السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ایجوکیشن 303 کا لیکچر نمبر 24 ڈسکس کریں گے، ایموشنل ڈیولپمنٹ اینڈ اٹیچمنٹ کا۔ اوور ویو آپ نے سارا ریڈ آؤٹ کر لینا ہے، کریٹیکل کوسچنس بھی آپ نے سارے ریڈ آؤٹ کر لینے ہیں۔ ڈیفینیشن پہ چلتے ہیں۔ اٹیچمنٹ از ڈیفائنڈ ایز این انڈیورنگ ایموشنل ٹائی ٹو اے اسپیشل پرسن characterized by a tendency to seek and maintain closeness, especially during times of stress۔ جو اٹیچمنٹ ہے اس کی تعریف کسی اسپیشل پرسن کے ساتھ پائیدار جذباتی بندھن کے طور پر کی جاتی ہے، جس کی خصوصیت تلاش کرنے کے رجحان سے ہوتی ہے۔ مینٹین کلوزنس، قربت جو ہے وہ مینٹین، اسپیشلی ڈیورنگ ٹائمس آف اسٹریس، خاص طور پر اسٹریس کے ٹائم۔ نیکسٹ ٹاپک ہے امپورٹینس آف اٹیچمنٹ۔ اٹیچمنٹ ہیز ڈیپ روٹیڈ امپلیکیشنس فار انفینٹ سینس آف سیکورٹی۔ جو اٹیچمنٹ کے بچے کے تحفظ کے احساس پر ڈیپ روٹیڈ گہرے اثرات جو ہوتے ہیں، انویسٹیگیٹرز لائک Freud, Erikson and behaviorists like Watson described its impact on development۔ جو انویسٹیگیٹر ہے جیسے کہ فرائڈ، ایرکسن اور واٹسن جیسے طرز عمل کے ماہرین نے ترقی پر اس کے اثرات کو ڈسکرائب کیا۔ روٹس آف اٹیچمنٹ تھیوری، اس میں لارنس 1965 ایکسپیریمنٹلی demonstrated that a duckling would follow a surrogate mother if it imprints to it during its sensitive period۔ لارنس نے 1965 میں جو ایکسپیریمنٹل کے طور پر ظاہر کیا کہ بطخ جو ہے وہ ایک سروگیٹ ماں کی پیروی کرے گی اگر یہ اس پر نشان ڈالتی ہے۔ اس کے ڈیورنگ اٹ سینسٹیو پیریڈ، اس کے سینسٹیو پیریڈ کے درمیان، جان باولبے اپلائڈ دا سائنس آف ایتھولوجی لارجلی ڈیولپڈ بائی لارنس ٹمبرجن اینڈ وان فریش ٹو انفینٹ اٹیچمنٹ یوزنگ پرنسپلس بیہائنڈ امپرنٹنگ۔ لارنس 1965 نے تجرباتی طور پر یہ ظاہر کیا کہ بطخ جو ہے وہ ایک سروگیٹ ماں کی پیروی کرے گی اگر یہ اس پر نشان ڈالتی ہے۔ اس کے احساس میں جان باولبے نے اخلاقیات کی سائنس کا اطلاق کیا جو بڑی حد تک لارنس ٹمبرجن نے تیار کیا، اور وان فریش کو انفینٹ اٹیچمنٹ کے اصولوں کا استعمال کرتے ہوئے امپرنٹنگ کے پیچھے اس نے اٹیچمنٹ واز بیسڈ آن ایولیوشن innate behaviors in the infants which initiate during sensitive period and were important in survival۔ منسل کے ارتقاء پر مبنی تھا، نوزائیدہ بچوں میں پیدائشی رویے جو حساس دور میں شروع ہوئے اور بقا میں اہم تھے۔ اس میں یہ ایم سی کیوز کے حوالے میں سے کویسچن آ سکتا ہے۔ 1965 میں جو اس نے ایکسپیریمنٹل ڈیمونسٹریٹڈ کیا تو اس میں ڈکلنگ وڈ فالو، اس نے سروگیٹ مدر کو فالو کیا اینڈ اٹ امپرنٹس ٹو اٹ، اور اس پر وہ نشان ڈالتی ہے ڈیورنگ اٹ سینسٹیو پیریڈ۔ نیکسٹ ہے روٹس آف اٹیچمنٹ تھیوری۔ روٹس آف اٹیچمنٹ تھیوری آر آلسو بیسڈ آن سیمینل ایکسپیریمنٹس کیریڈ آؤٹ بائی ہیری ہارلو۔ اٹیچمنٹ تھیوری کی جو روٹس وہ بھی ہیری ہارلو کے بنیادی تجربات پر مبنی ہیں۔ ڈیورنگ سینسٹیو پیریڈ اینیملز ڈیولپڈ اسٹرانگ اٹیچمنٹ ٹو سروگیٹ مدر دیٹ پرووائڈیڈ کنٹیکٹ کمفورٹ۔ حساس مدت کے دوران جانوروں نے کیا کیا، سروگیٹ ماؤں سے مضبوط لگاؤ پیدا کیا جو رابطہ فراہم کرتی ہیں، کنٹیکٹ، کمفورٹ، آرام۔ نیکسٹ ٹاپک ہے 4 سٹیجز آف اٹیچمنٹ ڈیولپمنٹ۔ اس میں 4 سٹیجز ہیں، کون کون سی ہیں وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ 4 سٹیجز ہیں برتھ، 6 ویکس، پری اٹیچمنٹ فیز۔ اس میں برتھ 6 ویک جو ہے ایک تو پری اٹیچمنٹ فیز ہے،
Babies' innate signals attract caregiver and caregivers remain close by when the baby responds positively. जब बच्चे के फितरी इशारे देखभाल करने वाले को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जब बच्चा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है तो जो केयर गिवर है उनके ज़्यादा क्लोज रहते हैं. इसमें जो बच्चे के फितरी इशारे जो हैं वो केयर गिवर्स को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं. Attachment in the making. Between 6 to 8 months के between the infant develops a sense of trust. उसमें जो बच्चे में जो sense of develop होता है, sense of trust जो develop होता है उसमें वो होता है 6 to 8 months में. ये भी MCQs type questions है. Will respond when signaled. वो रिस्पॉन्ड करेगा जब देखने वाला उसके इशारे पर जवाब देगा. इन्फेंट्स रिस्पॉन्ड मोर पॉजिटिवली टू फैमिलियर केयर गिवर एंड पेरेंट. बेबीज़ डोंट प्रोटेस्ट व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स. बेबीज़ जो हैं वो एहतजाज नहीं करते जब वो अपने वालिदैन से अलग किए जाएं. यानी कि 6 से 8 माह के दरमियान बच्चे में जो एतमाद का एहसास पैदा होता है कि केयर गिवर जो उसका है वो केयर की देखभाल करने वाला जो है इशारा करने पर उसका जवाब देगा. बच्चे वाक़िफ़ निगहदाश्त करने वाले या वालिदैन को ज़्यादा मुस्बत जवाब देते हैं. वालिदैन से अलग होने पर बच्चे एहतजाज नहीं करते. क्लियर कट अटैचमेंट. बिटवीन 8 to 24 months 8 to 24 months के बिटवीन बेबीज़ डिस्प्ले सेपरेशन एंड एंग्जाइटी. जो बेबीज़ में डिस्प्ले होती है सेपरेशन एंड एंग्जाइटी, बच्चे की अलहदगी की परेशानी जो है वो डिस्प्ले होती है. बेबीज़ प्रोटेस्ट व्हेन पेरेंट्स लीव. जो वालिदैन के जाने पर बच्चे एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट एहतजाज करते हैं बेबीज़ व्हेन पेरेंट्स लीव. जब उन्हें यानी कि 8 से 24 माह के दरमियान बच्चे जो हैं वो अपनी अलहदगी की परेशानी ज़ाहिर करते हैं. वालिदैन की जब उनके वालिदैन कहीं जाते हैं तो वो उस पर एहतजाज करते हैं. इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, बाहमी ताल्लुक़. इसमें बिटवीन 24 मंथ्स टू अबाउट 3 years 24 माह से तकरीबन 3 साल के दरमियान टोडलर्स इंक्रीज़ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सैम्बल्स एंड लैंग्वेज इम्प्रूव्स. टोडलर्स जो छोटे बच्चे होते हैं वो अलामतों की समझ में इजाफे में अलामतों की समझ में इजाफा करते हैं और लैंग्वेज इम्प्रूव्स. वो अपनी ज़ुबान में बेहतरी लाते हैं 24 माह से तकरीबन 3 साल के दरमियान. ये भी MCQs टाइप क्वेश्चन है. टोडलर्स अंडरस्टैंड दैट पेरेंट्स विल रिटर्न. जो टोडलर्स हैं वो समझते हैं कि वालिदैन उनके वापस आ जाएंगे. फैक्टर्स अफेक्टिंग अटैचमेंट. इसमें अपॉर्चुनिटी फॉर अटैचमेंट है, क्वालिटी ऑफ केयर गिवर है, ये याद रखना है आपने. रिस्पॉन्स promptly and consistently, interactional, synchronidas and sensitively turned emotional dance. इनके अटैचमेंट का अपॉर्चुनिटी है, केयर गिवर को की क्वालिटी और फौरी और मुश्किल तौर पर वो जवाब देता है. बाहमी हम आहंगी, एहसास तौर पर ट्यून करदा जज्बाती यानी इमोशनल डांस, जज्बाती जो रक्स. नेक्स्ट है इन्फेंट करेक्टरिस्टिक्स. इन्फेंट्स टेम्परामेंट, स्पेशल नीड्स, प्रीमेच्योरिटी और इलनेस. इसमें बच्चे का जो मिजाज है वो स्पेशल नीड, उसकी जो स्पेशल नीड्स होती हैं कबल इज़ वक्त, प्रीमेच्योरिटी उसके कबल इज़ वक्त, या इलनेसिस इसकी बीमारियाँ. ये जो फैमिली सर्कमस्टेंसेस हैं, जो फैमिली जो उनके हालात हैं, स्ट्रेस कैन अंडरमाइन अटैचमेंट, तनाव लगाव को कमज़ोर कर सकता है. पेरेंट्स इंटरनल वर्किंग मॉडल्स. यानी कि पेरेंट्स के जो इंटरनल काम करने वाले मॉडल हैं. पेरेंट्स ऑन अटैचमेंट एक्सपीरियंसेस, जो वालिदैन के अपने जो मुंसलिक तजर्बात. पेरेंट्स एबिलिटी टू एक्सेप्ट देयर पास्ट, जो पेरेंट्स की अपनी माजी को कबूल करने की जो एबिलिटी है. उसमें क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट, मैरी
Ainsworth designed the Strange Situation Lab experiment with 8 different episodes of separation and reunion. में जो मैरी आइंसवर्थ ने जो उसकी सेपरेशन की 8 डिफरेंट एपिसोड्स के साथ जो स्ट्रेंज सिचुएशन लैब के तजर्बे को उसने डिज़ाइन किया. अटैचमेंट यूज्ड मदर एज द सिक्योर बेस, और दोबारा मिलाप मुंसलिक शेरखार ने माँ को जो है वो महफूज अड्डे के तौर पर यूज़ किया. एंड वाज सूथ्ड बाय द मदर ड्यूरिंग द रीयूनियन, और दोबारा मिलाप के दौरान माँ की तरफ से तसल्ली हुई. एस्टैब्लिश 3 फॉर्म्स ऑफ अटैचमेंट, जो एस्टैब्लिश उसके अटैचमेंट की जो है वो 3 फॉर्म्स कायम की. सिक्योर अटैचमेंट, इसमें यूजेस केयर गिवर्स एज अ सिक्योर बेस, जो केयर गिवर है वो केयर गिवर को महफूज बुनियाद के तौर पर यूज़ किया जाता है. मे शो स्ट्रेस एट सेपरेशन, अलहदगी पर तकलीफ ज़ाहिर कर सकती है. बट द बेबी कैन द सूथ डैड रीयूनियन, लेकिन दोबारा मिलने पर बच्चे को सुकून मिल सकता है. 60 to 65% of North American children can be categorized as securely अटैचमेंट. जो 60 से शुमाली अमेरिका के 65% बच्चों को महफूज तरीके से मुंसलिक के तौर पर दर्जा बंदी किया जा सकता है. सिक्योर अटैचमेंट में उसने देखभाल करने वाले को जो है वो महफूज बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया. अलहदगी की तकलीफ ज़ाहिर कर सकती है, लेकिन दोबारा मिलने पर बच्चे को सुकून मिल सकता है. जो 60 साल से जो शुमाली अमेरिका के 65% बच्चों को महफूज तरीके से मुंसलिक के तौर पर दर्जा बंदी किया जा सकता है. इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट, इनसिक्योर अवॉइडेंस अटैच यानी कि गैर महफूज से बचने वाले अटैचमेंट. इसमें जो जब वो मौजूद है तो वालिदैन के लिए गैर जवाबदेह, जुदाई से वो परेशान नहीं, नो डिस्ट्रेस्ड बाय पार्टिंग, उसके यानी कि वो जुदाई से परेशान नहीं. वापसी पर वालिदैन को वो ग्रेट पेरेंट्स ऑन रिटर्न, वापसी पर वो वालिदैन को सलाम करने से ग्रेज या सुस्त. 20% ऑफ नॉर्थ अमेरिकन चिल्ड्रन कैन बी कैटेगराइज्ड टू एक्सप्रेस इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट. उसमें जो शुमाली अमेरिका के 20% बच्चों को गैर महफूज से बचने वाले अटैचमेंट के इजहार के लिए दर्जा बंदी की जा सकती है. ये सारा गैर महफूज बच्चे जो है वो बचने से अटैचमेंट में आएगा. इनसिक्योर रेजिस्टेंस अटैचमेंट, यानी कि इनसिक्योर जो मज़ाहम अटैचमेंट है वो इन्फेंट्स रिमेन क्लोज टू पेरेंट्स एंड नॉट एगर टू एक्सपोर्ट, यानी शेर ख्वार वालिदैन के करीब रहते हैं और तलाश करने पर वो तलाश करने के ख्वाहिशमंद नहीं होते. जुदाई से परेशान ड्यूरिंग रीयूनियन, इन्फेंट्स आर बाथ, उनके दौरान बच्चे जो है रीयूनियन के दौरान शेरहार बच्चे होते हैं जो बहुत क्लिंगी जो है वो चिपचिपा, और रेजिस्टेंस जो है उसको कहते हैं मज़ाहम एंड कंप्लेन और शिकायत. ये दोनों जो हैं वो शेरहार बच्चे में होते हैं. 12% ऑफ नॉर्थ अमेरिकन चिल्ड्रन कैन बी कैटेगराइज्ड एज इनसिक्योर रेजिस्टेंस. जो शुमाली अमेरिका के 12% बच्चों को गैर महफूज मज़ाहम के तौर पर दर्जा बंदी जो किया जा सकता है. नो कोहेरियंट स्ट्रेटजी फॉर हैंडलिंग सेपरेशन और रीयूनियन, जो सेपरेशन या रीयूनियन इनके दोबारा इत्तेहाद से निमटने के लिए कोई मरबूत हिकमत अमली नहीं है. बेबी लुक्स डेज्ड एंड कंफ्यूज्ड, जो बेबी है वो नज़र आता है जब वो डेज्ड जो है वो हैरान और उलझा हुआ नज़र आता है. 5 to 10% ऑफ नॉर्थ अमेरिकन चिल्ड्रन कैन बी पुट इनटू दिस कैटेगरी. इस कैटेगरी में जो है वो कितने आते हैं, उससे 5 से 10% शुमाली अमेरिका के बच्चों को इस कैटेगरी में रखा जा सकता है. इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ. समरी आपने खुद रीड आउट कर लेनी है, यानी कि समरी में उसने बताया कि हमने अटैचमेंट और इसके मुबाशरत बॉन्ड को देखा. इसमें जो बच्चे और इसकी देखभाल करने वाले के दरमियान मौजूद है. हम भी उसमें क्या करेंगे,
وی آلسو ڈسکس ڈفرینٹ فارمز آف اٹیچمنٹ. ہم ڈفرینٹ فارمز آف اٹیچمنٹ کو ڈسکس کریں گے. اینڈ فائنلی لکڈ ایٹ تھیریز آف اٹیچمنٹ. اور آخر میں ہم نے اٹیچمنٹ کے نظریات کو بھی